લાજપોર જેલમાં આવ્યા પહેલા ટીબીની બીમારી ન હતી, ત્યારબાદ દર્દી જેલમાં જ ટીબીમાં મોત થયા. રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગના સભ્ય સુરત લાજપોર જેલની મુલાકાતે દોડી આવ્યા હતા. ક્લિનિકનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું તો લાજપોર જેલમાંથી વધુ 9 નવા ટીબીના દર્દીઓ મળી આવ્યા હતા. લાજપોર જેલની મુલાકાતે રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકારી આયોગના સભ્યો જ્યોતિકા કારલા આવી પહોંચ્યા હતા. લાજપોર જેલમાં આવ્યાના 15 મહિનામાં એક જ 21 વર્ષીય કેદીનું ટીબીની બીમારી બાદ મોત નીપજ્યું હતું. ફરિયાદના આધારે જ્યોતિકા કારલા લાજપોર જેલની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. જેલનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. જેલમાં આવેલું ક્લિનિક કેદીઓથી મળતી સારવારની વિગતો મેળવી હતી. લાજપોર જેલમાંથી વધુ નવા 9 જેટલા ટીબીના 9 દર્દીઓ મળી આવ્યા છે. જ્યોતિકાએ જણાવ્યું હતું કે તેમને ફરિયાદ મળી હતી કે જેલમાં 21 વર્ષીય કેદીનું મોત થયું છે. આ યુવાન 15 મહિના પહેલા જેલમાં આવ્યો ત્યારે ટીબીની બીમારી ન હતી, પરંતુ જેલમાં રહ્યાના 15 જ મહિનામાં તેનું મોત થતાં કેદીઓના સ્વાસ્થ્યને લઈ ગંભીર ખામીઓ બહાર આવી છે, જેથી તેઓ લાજપોર જેલની મુલાકાતે આવ્યા હતા. વધુ 9 કેદીઓ ટીબીના મળ્યા હતા. જેલમાં કેદીને લાવવામાં આવે ઇનિશિયલી હેલ્થ સ્ક્રીનિંગની ખામીઓ જોવા મળી હતી, તો કેદીઓનું ડાયાબિટીસ, ECG સહિતના ટેસ્ટ બાદ જ સહી કરવામાં તેમણે આદેશ કર્યો છે. આજરોજ નેશનલ હ્યુમન રાઇટ્સ કમિશન ન્યૂ દિલ્હીના મેમ્બર શ્રી જ્યોતિકા કાલરા નાઓએ અત્યારે આજે સવારથી લાજપોર મધ્યસ્થ જેલની મુલાકાત કરી અહીંમાં ચાલતી તમામ પ્રવૃત્તિઓ વિશે એમને જાત માહિતી મેળવી. તમામ પાકા અને કાચા કેદીઓને મળીને રૂબરૂ તેઓના પ્રશ્નોને સાંભળ્યા. ખાસ કરીને કોરોના કાળમાં જે કેસો થયા એ વિશે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી. ટીબીના કેસો વિશે ખાસ કરીને તેઓના દ્વારા સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી, માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવ્યું. અત્યારની સ્થિતિએ લાજપોર જેલમાં ફક્ત 9 એવા ઇન્મેટ્સ છે કે જેને ફર્સ્ટ સ્ટેજ ટ્યુબરક્લોસિસ છે, એના વિશે પણ એમને વિસ્તૃત માહિતી આપી. તેના સિવાય તમામ કેદીઓ સાથે એમને પોતાના વિચારો તેમની સમક્ષ મૂક્યા, કેદીઓના પ્રશ્નો સાંભળ્યા. તમામ જેલ ખાતેની જે વ્યવસ્થાઓ છે, વેલફેરની જે પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે, એ વેલફેરની પ્રવૃત્તિઓ વિશે તેઓ જાણકારી મેળવી. જેમાં સુથારી વિભાગ છે, ડાયમંડ વિભાગ છે, સ્ટોનનું કામ છે, દરજી વિભાગ છે, મહિલા છે, લાઇબ્રેરી છે, અને ખાસ કરીને અમારી જે નવી જે સિસ્ટમ અમે જે ડેવલપ કરી છે જેલ ખાતે રેડિયો પ્રિઝનની, એમને મુલાકાત લીધી અને એ સિસ્ટમથી તેઓ ખૂબ પ્રભાવિત થયા અને પ્રશાસનને તેઓ દ્વારા એપ્રિસિએશન પણ કરવામાં આવ્યું. ઓવરઓલ નેશનલ હ્યુમન રાઇટ્સ કમિશન દ્વારા જે વિઝિટ કરવામાં આવી એમાં એમની જે કાર્યવાહી હતી એ એક એમની વિઝિટ સફળ રહી અને તેઓના તરફથી જે કેદીઓને મળતા જે લાભો છે અથવા તો જે માનવ અધિકારો છે એના વિશેની પણ વિસ્તૃત ચર્ચા તેઓએ કરી અને જે ખરેખર मुलाकात प्रशंसनीय रही और सफल रही। आज जो लाजपुर की आप मुलाकात की, इस बारे में की? हाँ, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्य हूँ और मेरे पास एक शिकायत आई थी क्योंकि जुडिशियल कस्टडी डेथ थी। जब हमने उसको एनालाइज किया तो पाया कि उसमें जो लड़के की डेथ हुई थी उसकी आयु 21 वर्ष थी और टीबी के वजह से उसकी 15 महीने के अंदर डेथ होती है और जब वो जेल में आता तो उसको बीमारी नहीं थी। और क्योंकि टीबी एक बहुत ही फैलने वाली बीमारी है तो हमको लगा कि इसकी गंभीरता को देखते हुए जेल एक बहुत कंजस्टेड एरिया होता है जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो इसकी गंभीरता को देखते हुए मैं यहाँ पे विज़िट करने का हमने प्लान बनाया। और वैसे भी हमारे जो कानून है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, उसमें जेलों को विज़िट करना एक फंक्शंस में आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। हमने यहाँ आकर जो पाया, हमने इनिशियल हेल्थ स्क्रीनिंग जो टेस्ट है उसमें उसको देखा और उसमें कुछ खामियां पाई। हमने ये संज्ञान में लाए कि इनिशियल हेल्थ स्क्रीनिंग के समय ही उसका जो डायबिटीज़ का टेस्ट है, शुगर का टेस्ट है या उसका ECG है तभी होना चाहिए, उसमें उसका संज्ञान, उसका सिग्नेचर तभी डॉक्टर की हो जब वो कंप्लीट हो जाए डॉक्यूमेंट। साथ ही साथ हमने ये पाया कि जो इनिशियल हेल्थ स्क्रीनिंग करने वाले डॉक्टर हैं
वो हर 24-24 घंटे के बाद बदलते हैं। तो हमको लगा कि एक ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो अनुभवी हो और कम से कम 1 साल तक यहाँ पर लगातार काम करे। इसके अलावा हम हॉस्पिटल में गए, जेल के हॉस्पिटल में गए, हम टीबी के उस वार्ड में भी गए, उन मरीज़ों से मिले जो टीबी के मरीज़ थे। वहाँ पे हमारे साथ हमने आने से पहले भी दिल्ली में टीबी के एक्सपर्ट डॉक्टर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर तन्मय से मीटिंग करी थी, उन्होंने हमें सब एक्सप्लेन किया था। फिर डॉक्टर पारुल टीबी की यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर है, एक उनके साथ और डॉक्टर है, उनके साथ जो टीबी के आइडेंटिफाइड पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या इलाज कैसे होना चाहिए और किसको जो ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट है उसको अलग किया जाना चाहिए, ये सब चीज़ें जेल प्रशासन के संज्ञान में लाई और वो बहुत पॉजिटिवली उन्होंने सब चीज़ों को लिया। और एक जो मुझे बहुत अच्छी लगी जेल की बात कि जेल में कोरोना काल में केवल लगभग 24,400 या 500 मरीज यहाँ पे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, पर कोरोना काल में केवल 28 लोगों को कोरोना होता है। ये एक बहुत ही खुशी की बात है और जिसके लिए जेल प्रशासन को बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से उसको दिया। और जैसा वो बता रहे थे कि वैक्सीनेशन का भी इशू जेल ने बहुत अच्छे से हैंडल किया और जिन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के आधार नहीं थे उनको आधार मुहैया कराकर वैक्सीनेशन दिया गया है। लगभग 98% को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स और अपने स्टाफ में सभी को दोनों वैक्सीन दी गई है। अंडर ट्रायल प्रिजनर को सिंगल वैक्सीन दी गई है और स्टाफ को डबल वैक्सीन दे दी गई है। और जो कुछ और बिंदु हमें लगे, स्टाफ कम है, जैसे हॉस्पिटल का स्टाफ कम है, जैसे यही डॉक्टर था, एक्सरे मशीन है पर उसको ऑपरेट करने वाला टेक्नीशियन नहीं है। तो जो डीएम साहब थे उनसे ये कहा गया है कि कम से कम हफ्ते में 1 बार टेक्नीशियन आए ताकि एक्सरे मशीन चल सके। और टीबी के मरीजों का जो डायग्नोसिस है वो एक्सरे से काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा हमने जेल की लाइब्रेरी देखी, हमने सजेस्ट किया कि लाइब्रेरी में बैठने का इंतज़ाम होना चाहिए, जिसको जेल सुपरिटेंडेंट ने बहुत अच्छे से माना। और हमने किचन देखी, किचन में बहुत अच्छा रोटी बनाने की मशीन और खाना बहुत सफाई से बन रहा था। खाना हमने खाया भी वो वाला। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो सेंटर है जेल का, हम वहाँ भी गए और हमने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैंने जज साहब से बात भी करी। मेरा ये कहना है कि जो इंटरनेट का कनेक्शन था वो काफ़ी पुअर था, मेरी ही बात नहीं हो पा रही थी जज साहब से। तो एक कैदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जज साहब से कैसे बात हो सकेगी, ये बहुत, इसको समझना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत दिक्कत आ रही होगी। मेरी अपनी बात नहीं हो पा रही थी। तो एक तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि अच्छा इंटरनेट सेवा मिले उसको सुनिश्चित करना चाहिए। और वो जो एक कैदी था वो पॉक्सो का कन्विक्ट था और उसका ट्रायल था, विटनेस आया हुआ था, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था और जज साहब उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रायल कैसे कर रहे हैं, जब एक मुल्जिम अपने वकील के संपर्क में नहीं होगा तो कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन सही हो सकता है। तो उनका कहना था कि जेल अथॉरिटीज़ मुल्जिम को भेजती नहीं है इसलिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराते हैं। पर जब उसको तफ्तीश से पाया गया तो ये देखा गया कि कोर्ट से जेल के पास ऑर्डर आता है कि इस मुल्जिम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश करना है या इस मुल्जिम को फिज़िकली पेश करना है। तो जब उसका ट्रायल था तो कोर्ट से ऑर्डर आना चाहिए था कि उसको फिज़िकली पेश करना है, ऐसा ऑर्डर आया नहीं। और जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी ऑर्डर नहीं था, सिर्फ पिछली डेट पे बता दिया जाता है कि अगली डेट पर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होना है। तो ये गंभीर मसला है कि जो जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं वो अपनी केसों को ठीक से उनकी पैरवी नहीं हो पा रही है। और इसके साथ साथ हमने जो पाया कि जेल में जो जिनको सज़ा हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सज़ा हो जाती है या हाई कोर्ट की सज़ा हो जाती है, कि उनकी अपील वो सब कुछ समय से हो पा रहा है कि नहीं, उसके लिए हमने सजेस्ट किया है कि डीएम साहब को कि आप किसी लॉ कॉलेज को भी इसमें एसोसिएट करें ताकि लॉ स्टूडेंट उसको अच्छे से असिस्ट कर पाए जेल अथॉरिटीज़ को। इसके अलावा सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की जो फंक्शंस है, मतलब जो लोग सेंटेंस रिमिशन, मतलब कि उनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए, जो उनकी एंटाइटलमेंट है सेक्शन 432, 433, 433A CRPC में, हमने उसको भी रिव्यू किया
और जहाँ तक हमें अभी सूचना अभी तक मिली है कि सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में जो केसेस जाते हैं उनको स्टेट कैसे एडमिनिस्टर करता है, अभी वो सारे हमने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, कितने केसेस जाते हैं, किस आधार पे केसेस जाते हैं, और वो जो रिजेक्ट होते हैं या एक्सेप्ट होते हैं उनके ऑर्डर्स क्या है, वो सब चीज़ें हम रिव्यू करेंगे और ये सब चीज़ें टोटल में रिव्यू करने के बाद हम अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे। धन्यवाद। હાલ તો લાજપોર જેલમાં કેદીઓના આરોગ્યની દરકાર ન લેવાતી હોવાની પણ બૂમ ઉઠી છે, ત્યારે જેલમાં બીમારી કેદીઓના એક્સરે કરી શકાય તે માટે મશીન સામે ટેકનિશિયનનો પણ અભાવ જોવાનું મળ્યો છે। ત્યારે હવે રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગના સભ્ય જ્યોતિ કાની મુલાકાત બાદ લાજપોર જેલમાં કેદીઓના આરોગ્યને લઈ કામગીરી કરાશે કે કેમ તે જોવું રહ્યું। બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ સુરત।